अनंतकोटि ब्रह्मांडनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। கலியுகத்தில் பிறவி எடுத்தோர் உய்யும் மார்க்கத்தை பெறுவதற்கு துணையாக இருப்பது சிவமந்திரம், சிவதரிசனம், சிவ வழிபாடு முதலியனவா. இவை மூன்றும் வாழ்வில் இன்றியமையாதவை. சிவமே எல்லா உலகங்களுக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் முதலானவன். எல்லாம் சிவமயம், எங்கும் சிவமயம், எதிலும் சிவமயம். ஆம், நமச்சிவாயா என்ற 5 எழுத்து மந்திரத்தை தினமும் ஜபித்து வந்தாலே வாழ்வில் எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கிவிடும். சிவன் கோவிலுக்கு சிறிதளவு பணி செய்தாலும் மகத்தான பலன் கிடைக்கும். சிவலிங்கத்திற்கு வலை கட்டி பாதுகாத்த சிலந்தி மறுபிறவியில் கோட் செங்கட் சோழனாக பிறந்து தமிழகத்தில் பல மாடக் கோயில்களை கட்டி சிவன் திருப்பணி செய்து புகழ் பெற்றான். சிவன் கோயில் விளக்கெரிய திரியை தூண்டிவிட்ட எலி மறுபிறவியில் சிவன் அருளால் மகாபலி சக்கரவர்த்தியாக பிறந்தான். சிவநாமத்திற்கு அப்படி ஒரு மகிமை. சிவசிவா என்று தினமும் மனதால் நினைத்து உச்சரித்தாலே போதும், பாவங்கள் நீங்கும், மனம் தூய்மையடையும். ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஹர ஹர போலே நம சிவாய. ஒரு முறை பிரம்மனுக்கும் திருமாலுக்கும் இடையே தங்களில் பெரியவர் யார் எனும் சர்ச்சை எழுந்தது. அவர்கள் இருவருக்குமான மோதலால் உலகமும் உயிர்களும் பாதிப்படையுமே என அச்சம் கொண்ட தேவர்கள் பரமேஸ்வரனை சரணடைந்தனர். அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினார் ஈஸ்வரன். திருமாலுக்கும் பிரம்மனுக்கும் நடுவில் பெரும் நெருப்பு தூணாய் தோன்றினார். அதன் பிரம்மாண்டம் அவர்களை அயர வைத்தது. அந்த பிரம்மாண்டத்தின் திருவடியையோ அல்லது திருமுடியையோ முதலில் கண்டு வருபவரே பெரியவர் என்று முடிவானது. உடனே பெருமாள் வராக உருவெடுத்து பூமியை அகழ்ந்து திருவடியை காணச் சென்றார். பிரம்மனோ அன்னப்பறவையாக மாறி திருமுடியை காண உயரப் பறந்தார். ஆனால் இருவராலும் அந்த நெருப்பு தூணின் அடிமுடியை காண இயலாது போனது. செய்வதறியாமல் இருவரும் துதித்து நிற்க தேவர்கள் யாவரும் போற்றி வழிபட அந்த நெருப்பு தூணின் மையத்தில் மான், மழு, அபய, வரத முத்திரை தாங்கியவராக திருக்காட்சி தந்தார் சிவபெருமான். அங்கிருந்து அனைவருக்கும் அனுகிரகம் தந்தார். ஆகம முறைப்படி இத்தினத்தில் எம்மை பூஜிக்க நல்லது யாவும் நடந்தேறும். பாவங்களை பொசுக்கி சிவகதி காட்டும் அற்புதமான இந்த பூஜை அஸ்வமேதம் முதலான யாகங்கள் செய்வதை காட்டிலும் 100 மடங்கு பலன் தருவது என்று அருள் பாலித்த பின் திருக்கையிலைக்கு எழுந்தருளினார். இப்படி திருமால் மற்றும் பிரம்மாதி தேவர்கள் சிவனருள் பெற்ற தினம் மாசி மாதம் தேய்பிறை சதுர்த்தசி நாள். இதையே உலகத்தார் மகா சிவராத்திரியாக கொண்டாடுகின்றனர். ஹர ஹர போலே நம
இத்தனை சீரும் சிறப்பும் கொண்ட மகா சிவராத்திரி விரதம் சாய் குருஸ்தான் யோக் சென்டரில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घण्टानादं करोम्यादौ देवताह्वानलाञ्छनम्। ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम् पर्वदैवाचलिः इन्द्रयिवेह ध्रुवतिष्ठ इह राष्ट्रमुदारय अभिदिष्टवृदन्यतः अधरेशम् तु शत्रवः इन्द्रयिव वृत्रः दिष्ठ सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु दध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्य मित्रम् देवम् मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधानभिषावर्धयन्तः सतं जीवेम शरदस्य वीराः सपवित्रवाणिः। ॐ यत्र यत्र क्रियारम्भे मुष्टिभ्यां मूर्ध्निदेशिकः विनायकं नमस्कृत्य कुट्टनं पञ्चवारकम् अमृतं यत् सुषुम्नायां सरितामिव सागरम् मूलाधारस्य विघ्नेशम् प्राप्य कर्म शुभावगम् हस्तौ तु वामसव्यौ च मुष्टिमुद्रां प्रकल्पयेत् मध्यमाङ्गुलिभिश्चैव मस्तके सम्प्रदाडयेत् मस्तकस्थामृतेनैव शरीराङ्गानि चेषयेत् अमृताप्लावनेनैव विघ्नराजप्रियो भवेत्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। அதிகாலை 6 மணியில் தொடங்கி சிவவிக்கிரகத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு பால், தேன், தயிர், விபூதி, மஞ்சள், பன்னீர் மற்றும் இளநீர் ஆகியவற்றால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवासरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापगासिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिजागसी यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरुमाहितुम् श्रीपुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकम् सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विषक् नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः
प्रमुञ्च धन्वनस्तुभयो रात्रियोज्याम् याश्च ते हस्तैषवपराता भगवो वपा अवदत्यदनुस्त्वगम् सहस्राक्षगदेषुदे निशीर्य सल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्तनुःखपर्दिनो विशल्यो बाणभागम् उता अणे सन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् त्ववदन्वने परिते दन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो येषु दिष्टभारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पतीनाम् पतये नमो नमो बब्लुशाय विव्याधिनेन्नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्वी जगदाम् पतये नमो नमो रुद्रायादनाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूतायाहन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते ीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभा। பக்த கோடிகள் திரளாக கலந்து கொண்டு தங்கள் திருக்கரங்களாலேயே சிவனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்து சிவனின் திருவருளை பெற்றனர்.
गङ्गजटातर